A distraught mother, unconsolable, nearly 2 weeks since her son was crushed to death after he was thrown off his bike in that fatal collision. The only thing her mother at the moment wants is justice. Instead, she has a lot of unanswered questions as the police continue to probe and unfold this case. More mysteries are appearing than answers. The dashcam footage has now brought out further shocking details of how a 23-year-old's life was snuffed out because a teenager, a minor, behind the wheel of a Scorpio SUV was high on reels, social media validation, many would call it. The accused, now emerging as an underage minor, was speeding as his sister was recording videos and making reels for the social media. Take a look at that on your screens. The alleged moment of the collision crash, you can see the bike coming right from the front. And this is a social validation attempt at making an Instagram or some sort of social media platform reel. The SUV, it narrowly misses a bus, just like you can see on your screens, before colliding head on with the biker, flinging the 23-year-old Sahil in the air about 30 to 40 feet is what eyewitness accounts tell us. Sahil was declared dead on the spot. At the spot, the police found 2 cars, including a taxi and a motorcycle badly damaged. The injured taxi driver, Ajit Singh, was rushed to the IG hospital nearby, and his statement has also been recorded by the cops. And doctors are awaiting the final medical opinion on the taxi driver's front. Grievously injured, this minor behind the SUV did not press the brakes of the SUV even after collision. Post-mortem report is out, and it shows how multi-organ collapse was detailed after Sahil's collision. Craniocerebral injury, damage to the brain caused by external force. We're talking about injury to the spleen, to the liver and other vital organs. That was the magnitude of this crash. Accumulation of blood in the pleural cavity. This is the space between the lung and the chest wall. Blood in the esophagus and the pharynx. And beyond the shocking post-mortem report, what's emerging is the conflicting reports on the age of the SUV driver. The first FIR claims he is 19 years old. News 9 has exclusively accessed the birth certificate of the accused, which means that the accused who was driving this Scorpio SUV was a teenager and an unlicensed driver. The police now say his father has been charge sheeted and will be held liable since the accused is a minor. More questions than answers at this point. डीसीपी द्वारका अंकित जी हमारे साथ हैं। सर, ये पूरा मामला बताइए, क्या है थोड़ा सा, जो 3 फरवरी का आ रहा है जिसमें साहिल नाम के शख्स की मौत हुई है। देखिए, 3 फरवरी को द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक 11:57 में एक पीसीआर कॉल आती है रोड एक्सीडेंट की। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है, उसके पास एक रोड है जिसमें ये इंसिडेंट हुआ था। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। एक बाइक राइडर है जिसकी टक्कर हुई, एक स्कॉर्पियो थी ऑफेंडिंग व्हीकल, जिससे टक्कर हुई। ऑफेंडिंग व्हीकल ने फिर एक गाड़ी खड़ी थी टैक्सी, उस पे भी टक्कर मारी है। और वहाँ पर इंसिडेंट के बाद पीसीआर वैन पहुंची, वहाँ पर थाने का स्टाफ पहुंचा, एसीपी द्वारका थे, वो खुद पहुंचे वहाँ पर, और वहाँ पर ही बच्चे की डेथ हो गई थी। क्राइम टीम को इन्फॉर्म किया गया। जो ऑफेंडिंग व्हीकल था उसमें 2 लोग थे, एक लड़की थी, एक लड़का था। इनिशियली जब उससे पूछा गया, इनिशियली जब पूछताछ में उससे पूछा गया एफआईआर के लिए, तो उसने, लड़के ने अपनी उम्र 19 साल बताई। इमीडिएटली पुलिस स्टेशन से आईओ ने केस रजिस्टर किया। क्राइम टीम अपना काम कर रही थी। उसके बाद उसके पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट्स और सभी चीज़ों के लिए बुलाया गया। जब पेरेंट को बुलाया गया तो जब एज की वेरिफिकेशन की बात आई तो पता चला उसकी एज 17 साल कुछ महीने है।
इसके चलते आईओ ने अप्रहेंड करके उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोड्यूस किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको जुवेनाइल को ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया। 3 तारीख से 10 तारीख तक वो ऑब्जर्वेशन होम में था। 10 तारीख को जेजेबी ने एग्जामिनेशन के ग्राउंड्स पे उसको एग्जाम जो आज से शुरू हो रहा है अंतरिम रिलीफ दिया है। और फर्दर इसमें जो फादर ने अपने व्हीकल को यूज करने दिया, ओनर व्हीकल का फादर था, उसके खिलाफ भी हमने उसको बाउंड डाउन कर दिया था और उसको चार्जशीट भी कर रहे हैं एमवी एक्ट में। अजीत जी क्या हुआ, थोड़ा याद करके बताइए। सर मैंने आवाज सी सुनी तो मैंने साइड शीशे में देखा। आपकी टैक्सी खड़ी हुई थी? हाँ, साइड में खड़ी थी। तो पीछे से स्कॉर्पियो आ रही थी, उसके नीचे बाइक फंसी हुई थी और स्कॉर्पियो की स्पीड इतनी थी कि मैं गाड़ी से उतर भी नहीं पाया। उसने मेरी गाड़ी में ठोकी, मेरी गाड़ी जाके आगे लगी बस में, बस भी सरक गई वहां से। फिर सर मैं तो एकदम तो उसमें हो गया। कितनी रही होगी आपके हिसाब से, जब बता रहे हो आपको उतरने का मौका भी नहीं मिला? सर स्पीड 80 से ऊपर ही थी। उसमें 100, 90 हो चाहे 110 हो, मतलब 80 से ऊपर ही थी। 100 से ऊपर भी हो सकती है, जितना आप बता रहे हैं कि इतनी तेज हाँ। टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी सर, एक बार तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया। मतलब 2-3 सेकंड में ही उसने बिल्कुल ऐसा कर दिया। एक बार तो मेरे को ऐसा लगा जब बच्चों ने बाहर निकाला कि मेरे नीचे का हिस्सा ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि जब आपकी डिजायर को टक्कर मारी उससे पहले ही जो साहिल जो लड़का मारा उसकी बाइक उसके नीचे थी और नीचे ही देखी थी मैंने साइड शीशे से। और वो मेरी गाड़ी से 2 कदम पहले उस बाइक के 2 हिस्से होकर वो उछट गई थी ऊपर। अच्छा, टक्कर लगने के बाद ही? हाँ, मेरी गाड़ी पे भी उसके टुकड़े पड़े थे आके। मैं जब ही तो बता रहा हूँ, मेरे को तो संभलने का भी मौका नहीं दिया कि भाई उतर के भाग जाऊं। इतनी तेज टक्कर मारी उसने कि सर मेरे का तो बिल्कुल ही वो हो गया था। फिर वो मैं गाड़ी में ही पड़ा था, कुछ बच्चे थे वो कॉलेज के थे, एक वैसे राह चलते, उन्होंने मेरे को बाहर निकाला, शायद कॉलेज के ही थे, एक लड़की थी। उन्होंने फिर मेरे को साइड में बैठाया, फिर बताई कि अंकल एक बच्चा खत्म हो गया। तो मैंने सोचा वो कॉलेज का ही होगा, वो अपनी बाइक ऐसे निकाल रहा होगा और इसने टक्कर मार दी। फिर उन्होंने बताया कि वो लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है कि भाई हमारा कुछ ना हो, हम देख लेंगे। Well, a poster on Sahil's study table, it reads, "They want to fly first class, I want to own the plane." Another poster read, "D for discipline and D for dreams." That's the life that was simply just cut short. Earlier in the day, my colleague Shweta Kothari spoke to Sahil's mother, Ina Makan. Listen in to this conversation as well. Joining us on the show is Sahil's mother, Ina Makan. Madam, thank you very much for taking time out. I have to first begin by asking you, it's a tragedy that nobody should have to go through. It shouldn't happen to anyone. But पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, आपके बेटे की वहाँ पे ऑन स्पॉट मृत्यु हुई, आपका इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर क्या रवैया है, क्या कहना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों से? सिस्टम से, जुडिशरी से, कि किसी और पेरेंट का बच्चा, इंतजार मत करो कि किसी और पेरेंट का बच्चा जाए, तब चीजों में सुधार हो। इनको पकड़ो, इनको प्लीज पकड़ो। इसके बाप ने भी बहुत सारे कांड किए होंगे, जरूर इसने बहुत सारे ऐसे क्राइम किए ही होंगे, तभी इसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये अपने बच्चे को गाड़ी दे रहा है। आप ये भी फाइंड आउट करो, मेरे बच्चे के थ्रू हो सकता है आपको रियलिटी पता चले। मेरा बच्चा तो गया, लेकिन इसके बाप को सिस्टम का पता है कि सिस्टम वीक है, शायद इसीलिए इस चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है। तभी एक जुवेनाइल बच्चे को या अनलाइसेंस्ड बच्चे को जो है ऑटोमेटिक न्यू गाड़ियां दी जा रही है, लग्जरी गाड़ी दी जा रही है फन रील्स बनाने के लिए। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। आप लड़ रही हैं जस्टिस के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आगे आपकी एक्शंस क्या रहेंगे? हाउ विल यू फाइट फॉर जस्टिस? आगे चलकर आप क्या करने वाली हैं? आप अपील कर रही हैं मीडिया को, आप बात कर रही हैं लोगों को, पुलिस मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स इस वक्त दे रहा है, कह रहा है कि वो बच्चा अंडर एज था, कभी कह रहा है नहीं था। आप कैसे लड़ेंगी जस्टिस के लिए?
जगह जगह जाके धक्के नहीं खा सकती। तो ये अब मीडिया का काम है, सिस्टम का काम है, जुडिशरी का काम है मुझे जस्टिस दिलाना। मैं सिस्टम से, पुलिस से, मीडिया से, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इवन पब्लिक से, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज, नो चाइल्ड शुड गो आफ्टर माई चाइल्ड। अपने बच्चों को बचा लो, अपने बच्चों के लिए लड़ लो प्लीज। मेरा बच्चा तो चला गया, उसके लिए लड़ने के लिए मैं ही बची हूँ, मैं लड़ूंगी। अपने बच्चों को बचा लो। दोबारा कोई ऐसी न्यूज नहीं आनी चाहिए किसी रईसजादे ने कुचल दिया, बच्चों को उड़ा दिया। ये हेडलाइन कभी नहीं होनी चाहिए। प्लीज इस फैमिली के खिलाफ खड़े हो, पब्लिक भी खड़ी हो इस फैमिली के खिलाफ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मेरे मासूम बच्चे की बलि से अपने बच्चों को बचा लो प्लीज, अपने बच्चों को बचा लो। जी, काफ़ी सारी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही हैं। पुलिस अपना वर्जन बार बार चेंज कर रही है। ड्राइवर की क्या उम्र थी, क्या वो 17 साल के थे, क्या वो 19 साल के थे, इस पर आपका क्या कहना है? कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही अभी तक, क्या वो अंडर एज थे कि नहीं थे जिस वक्त वो ड्राइव कर रहे थे? मैम, मैं इस बारे में बता चुकी हूँ कि ये एविडेंसेस चेक करना पुलिस का काम है, मीडिया का काम है। मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी एविडेंसेस निकालने के लिए, आप बताइए। जो पुलिस ने मेरे को बताया है कि उन्होंने एमसीडी से और जहाँ जहाँ से भी जो जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निकाले हैं उसके आधार पे उन्होंने जो मुझे बताया है वही स्टेटमेंट मैंने आपको दी है। तो मैं तो कहीं नहीं गई हूँ कुछ लेने के लिए, जो मुझे पुलिस ने बताया मैं वही आपको बता रही हूँ। तो उसके आगे उसको फाइनली चेक करने के लिए तो आप लोग हैं, आपके बहुत लंबे हाथ हैं, आप लोग अपने लेवल पे चेक कीजिए, आप उसको सही दिशा दिखाइए कि वो क्या सही है क्या गलत है, वो आप देखिए। मेरे पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जहां मैं जा जाके धक्के खा खा के और चीजें निकालूं। मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है। मैं मीडिया के आगे और आप लोगों के आगे और सिस्टम के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बस उसी रिक्वेस्ट के बेस पे आप लोग जो बेस्ट कर सकते हैं मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए वो कीजिए। इन्ना मकान जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपको कॉन्फिडेंस है पुलिस में? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि प्रोब ढंग से होगी? 2 हफ्ते हो चुके हैं आपके बेटे को गए हुए, 2 हफ्तों में कोई क्लैरिटी निकल कर नहीं आई है। पुलिस अभी भी कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या आप अभी भी भरोसा रखती हैं सिस्टम पर, पुलिस पर? मैं बहुत कह चुकी हूँ, मेरे पास थ्रेट्स भी आ रहे हैं, मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं दबने वाली, क्योंकि मेरे पास पीछे रोने के लिए अब कोई नहीं है। मैं नहीं दबने वाली। मैं अपने बच्चे को पालने के लिए भी नहीं दबी थी, अब मैं उसको जस्टिस दिलाने के लिए भी नहीं दबूंगी। सिस्टम को खरीदने की जो इनको गलतफहमी है कि ये हर मोड़ पे मैम, वो आप लोग फाइंड आउट कीजिए। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ रहा है, आप देखिए। मेरे बच्चे का अकाउंट रिपोर्ट कराया गया, बैन कराया गया, और भी बहुत चीजें हो रही हैं, और अभी तो चल ही रहा है। अभी तो बहुत कुछ आएगा सामने, तो अभी तो शुरुआत है। तो आप लोग देखिए, वो मैं आप लोगों को इसकी जिम्मेदारी देती हूँ। अगर आप लोग इन्ना मकान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू हैड अ लॉन्ग फाइट and I think the fight is going to be even longer from here on. Thank you very much for taking time out. Thank you for joining us on the show.